In this question, two long parallel conducting cylindrical wires are kept parallel to each other. A resistance R and battery of EMF V are connected as shown. Diameter of each wire is small d and distance between their axes is capital D, such that capital D is equal to 50 times of small d. That means capital D, distance between the wires, is much greater than their diameter. Find resistance such that electric force and magnetic force between the wires are equal. तो इस तरीके के क्वेश्चन, सिमिलर नेचर क्वेश्चन मैंने कुछ दिनों पहले भी अपलोड किया हुआ है, जिसमें ये वायर्स की जगह पे वहाँ पे रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग स्ट्रिप्स थी और वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा था. यहाँ पर भी दोनों का बिहेवियर सम काइंड ऑफ कैपेसिटर होगा. वी कैन कॉल इट एज वायर कैपेसिटर, वी कैन कॉल इट एज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. दिस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर वी नो फ्रॉम द थ्योरी, in which the two cylinders are coaxial. These two cylinders are not obviously coaxial. These are separated by a small distance, separated by some distance. So let us start this question. Current in these wires will be equal to V by R, and this current will flow like this in this cylindrical wire and will return like this. So this is current I and this is current I. First let us calculate the magnetic force between these two wires. So two infinite wires, if there are two infinite wires kept parallel to each other and current are in opposite direction, then we know that these two wires repel each other if current in opposite direction. Distance between them we can take as capital D. So magnetic field created by one wire is mu naught I divided by 2 pi d. This is the standard formula of infinite wire. Current in another wire is equal to I, and we can take length is equal to unity. Suppose I am taking length is equal to 1 और length is equal to L भी लेके आप कर सकते हो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको. तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा यूनिट लेंथ पे वो mu naught I स्क्वायर डिवाइड बाई 2 pi d हो जाएगा, और I की जगह पे वी कैन पुट V by R. So this is mu naught divided by 2 pi d V square by R square. This is the magnetic force between these two wires, which is repulsive force. Now coming back to the electric force. For electric force we must find charge on these two cylindrical wires. For charge we can denote the charge by linear charge density, because charge will be on the surface, and we can use sigma surface charge density, or we can use lambda here because charge is on the surface only, and we can just multiply by lambda into length to know the charge on a particular length. Suppose we want to know the charge on this segment on this length. If we know this length, we can multiply this length into lambda and we can know the charge. So lambda I am taking as linear charge density, and in terms of linear charge density, the electric field of infinite wire is 2 k lambda by R. We can use that result directly in terms of lambda. I am drawing the diagram like this. Suppose this is the wire on which charge is plus lambda, and this is the wires on which charge is minus lambda. Suppose an observer is looking from here and he can see the cross sections like this. Radius will be equal to d by 2. So radius is d by 2. Radius is d by 2 and center to center distance is capital D. तो लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए बस मुझे इक्वेशन यहाँ पे ये लिखनी होगी कि दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के इक्वल है. तो मैं सरफेस टू सरफेस के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पे चला जाऊँगा और इस तरीके से रेडियल डायरेक्शन में चले जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा. इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी टुवर्ड्स राइट होगा, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी टुवर्ड्स राइट होगा. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस. दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बस मुझे यहाँ पर E डॉट डी आर इसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस को इस V के बराबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा. तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इस V के इक्वल होगा. तो हमारे पास में एक ऑप्शन ये है कि जो V है उसको आप यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर यहाँ पे कर दो. तो सपोज़ यहाँ से R डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख लेता हूँ. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2 k लैम्डा बाई आर, राइट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2 k लैम्डा, और उसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस आर. जस्ट इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन, और r की जो लिमिट है सरफेस से लेके सरफेस, तो सरफेस पे स्मॉल r की जो वैल्यू है वो d बाई 2, और यहाँ पर स्मॉल r की जो वैल्यू है वो d माइनस d बाई 2 हो जाएगी. मैं
इसके एक्सेस से डिस्टेंस ले रहा हूँ। एक ऑप्शन तो ये है, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर यह है कि क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एक जैसे वेरी करेंगे, बस फ़र्क ये होगा कि यहाँ से यहाँ जब आप जाओगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, इसका बढ़ता जाएगा। तो जिस तरीके से इसका यहाँ पर इधर जाने में कम होता जा रहा है, अगर आप यहाँ से इधर की तरफ आओगे तो इसका भी वैसे ही वेरी कर रहा होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में V आ रहा है, तो सिर्फ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो V/2 होगा, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो V/2। दोनों V/2 कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे इंडिविजुअली। तो आप यहाँ पर इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो कि V/2 इज कंट्रीब्यूटेड बाय, लेट्स से दिस इज A, V/2 इज कंट्रीब्यूटेड बाय A। तो A का इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली आप यहाँ पे 2 के λ/r लिख करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हो फ्रॉम D/2 तो D माइनस D/2। तो दोनों से आपको सेम रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो मैं इसी को लेकर के आगे यहाँ प्रोसीड कर रहा हूँ और लैम्डा कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा V इज इक्वल टू दिस 4k lambda, this is obviously constant, dr/r is ln r, and after putting the limits ln d minus d/2 divided by d/2. Since capital D is much greater than small d, तो जो कैपिटल D और यहाँ पे माइनस d/2 है, तो मैं माइनस d/2 को यहाँ से नेगलेक्ट कर सकता हूँ। सो आई कैन राइट इट फर्दर एज 4k lambda ln 2 capital D by D. Capital D by small d is 50. 50 into 2, this will be 100. So it is 4k lambda, or this is ln 100. Now we know the lambda from here. From this equation we can find the lambda, and in terms of lambda we can find the force between these two wires. इन दोनों वायर की वजह से फोर्स, तो फोर्स निकालने के लिए इसकी वजह से यहाँ पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन वायर एट द लोकेशन ऑफ अदर वायर, और क्योंकि डायमीटर वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है तो हमें इसके डायमेंशंस को नहीं देखना होगा। जस्ट मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक थिन वायर की तरह ट्रीट करके इसको यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2k lambda by d. This is the electric field due to one wire, and charge on other wire. I am again taking the unit length, so it will give the force on unit length. Lambda into L, lambda into 1 कर दिया यहाँ पर इसको मैंने। तो this is 2k lambda square by d, and obviously the electric force will be of attractive nature. Both will attract each other. So these two attractive and repulsive forces are equal. Net force on the wires will be 0 then. तो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स. लेट अस इक्वेट दिस टू फोर्सेस. सो 2k lambda square by d, this is equal to mu naught upon 2 pi d v square by r square. Now we want to find the r. k की जगह पे आप 1/4 pi epsilon naught रख सकते हो, और लैम्डा जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो आप यहाँ पर रख लो. तो डायरेक्टली मैं अब यहाँ पर आगे r लिख रहा हूँ कि r यहाँ पे क्या आएगा. तो r की जो वैल्यू है वो अब डायरेक्टली इसके बराबर आ जाएगी 1/pi √ mu naught by epsilon naught ln 100. ठीक है, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर. और अगर आप यहाँ पे, क्योंकि पाई mu naught epsilon naught सबकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, वी कैन राइट द वैल्यूज़ ऑफ ऑल दिस वेरिएबल्स. तो सब वेरिएबल्स की वैल्यू रखने के बाद में जो आंसर है वो कुछ इतने के आसपास आ जाएगा, 552.4. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर.